कांग्रेस की तरफ से? स्टेट लाइक आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, from these 4 states we are releasing 43 lists today, 43 names today. Basically we know that actually the Congress is fighting this election for poor. Basically this election of 2024 is poor versus rich. So far we announced the guarantees. From the guarantee itself is very clear that we are trying to address the issue of farmers. We are very much concerned about the issue of youth in this country, unemployment issue. We are very much concerned about the social justice of this country. Today, I think Honorable Congress President and Rahul Gandhi ji has announced Adivasi Sankalp. This fight is very clear. As far as Congress party is concerned, this fight is very clear. On one side, entire rich people and their interest is standing by BJP. On the other side, Congress is fighting for the poor people. This, the same way we fought election in Karnataka, same way we fought election in Telangana, we already clearly demonstrated our vision in the both of the states. We have delivered in Karnataka whatever we promised to the people of Karnataka. We have delivered in Telangana whatever we promised the people of Telangana. Now we are giving a promise to people of India that when we are going to come back in power, we will do very proactive steps and actions in favor of poor people of this country. The other side only, they are only talking about the divisive agendas. They want to divert the entire attention of the common man through these agendas. That is what we are witnessing every day, day by day. One after one announcement is coming to divide the people, spread the violence among the people, spread the hatred among the people. So our agenda is very clear. Our agenda is people's agenda. Our agenda is poor people agenda. That's why we are sticking on these guarantees. Our candidate selection also certainly reflecting on these agendas. So far we are going to that path. With this word now I am going to announce the candidates which had been cleared by the Central Election Committee of the Congress Party. Assam, Kokrajhar ST, Garjan Mashari. Assam, Dubri, Rakibil Hussain. Assam, Barpeta, Deep Bayan. Assam, Darang Udalguri, Madhav Rajbanshi. Assam, Guwahati, Srimati Meera Barthukar Goswami. Assam, Dibu, Joyram Engling. Assam, Karimganj, Hafiz Rashid Ahmad Chowdhury. Assam, Silchar, Surjaya Kant Sarkar. Assam, Nagaon, Pratyut Bardoli. Assam, Gazaringa, Srimati Rosalina Turki. Assam, Sonitpur, Premlal Ganchu. Assam, Jorhat, Gaurav Gogoi. Then Gujarat, Kutch, Nishibai Lalem. Gujarat, Benskantha, Mrs. Geniben Thakur. Gujarat, Ahmedabad East, Rohan Gupta. Gujarat, Ahmedabad West, Bharat Makwana. Gujarat, Porbandar, Lalitbai Vaswai. Gujarat, Bardoli East, Sithar Chowdhury. Gujarat, Valsad, Anandbhai Patel. Madhya Pradesh, Bint, Phul Singh Bararia. Tikamgarh, Madhya Pradesh, Pankaj Agarwal. Madhya Pradesh, Satna, Siddharth Kushwaha.
मध्य प्रदेश सिद्धि कमलेश्वर पटेल, मध्य प्रदेश मंडला एसटी ओंकार सिंह मार्कम, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा नकुल नाथ, मध्य प्रदेश देवास राजेंद्र मालव्या, मध्य प्रदेश दार राधेश्याम मोवल, मध्य प्रदेश खरगोन पोरलाल खाटे, मध्य प्रदेश बैतूल रामू ठेकम, देन राजस्थान बीकानेर गोविंदराम मेघवाल, राजस्थान चुरू राहुल कसवाल, राजस्थान झुंझुनू ब्रिजेंद्र ओला, राजस्थान अलवर ललित यादव, राजस्थान भरतपुर मिसेस संजना यादव, राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर हर्षचंद्र मीणा, जोधपुर राजस्थान करण सिंह उचियाडा, राजस्थान जालोर वैभव गहलोत, राजस्थान उदयपुर ताराचंद मीणा, राजस्थान चित्तौड़गढ़ उदयलाल अंचना, उत्तराखंड तेहरी गरवाल, जोत सिंह गुनसोला, उत्तराखंड गरवाल गणेश गोंडियाल, उत्तराखंड अल्मोड़ा प्रदीप टमटा, दामन एंड दीव केतन दहियाबाई पटेल. In this list, there are general candidates. Out of this 43 is 10, OBC is 13, scheduled caste already 10, scheduled tribe 9, Muslim 1. That is out of 43, 33 belongs to SC, ST, OBC and minority. Age below 50 is 25. Age between 51 and 60 is 8. Between 61 and 72, 10. This is the breakup of the age. I think this is the second list also clearly reflecting our idea. That is 76.7% is SC, ST, OBC and minority. 76.7% is again below 60 years. Therefore, young and social justice ensured list we are presenting today. Okay, thank you. Sir. Let him read in मैं Hindi first. बहुत ही संक्षिप्त में वेणुगोपाल जी ने कहा है जो उसको दोहराना चाहूंगा. हम लोगों ने आज 43 कैंडिडेट्स की घोषणा करी है, जिसमें असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन एंड दीव से 1 कैंडिडेट की घोषणा करी है. तो कुल 43 कैंडिडेट्स हैं. इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर 76.7%, 76.7% SC, ST और OBC इसके अंदर लिस्ट में है. और युवाओं की अगर बात करें, कम उम्र के लोगों की अगर बात करें, तो इतने ही 76.7% यानी 43 में से 33 लोग 60 वर्ष से कम हैं. तो ये इस लिस्ट की विशेषता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको जनता चुन करके भेजेगी कि कांग्रेस के द्वारा दी जा रही गारंटीज को, संकल्प को पूरा करने के लिए ये सभी लोग लोकसभा में जाकर के कांग्रेस पार्टी के सोच को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करेंगे. धन्यवाद. Thank you. You take questions. What is happening with that? Is that still on or is the deliberation still on? Alliance talk is going on In Rajasthan? everywhere because wherever it is not complete.
में कांग्रेस की तरफ से दूसरे उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस की तरफ से 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा लोकसभा चुनाव के लिए कर दी गई है। और सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज 18 राजस्थान बता रहा है कि राजस्थान के लिए 25 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान कर दिए गए हैं, जिसमें गोविंद राम मेघवाल को बीकानेर से, राहुल कस्वा जो कि बीजेपी का दामन छोड़कर अभी कांग्रेस का दामन थामा है, उनको भी चुरू से इस बार उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। वैभव गहलोत को जालोर से टिकट मिला है। बृजेंद्र ओला, ललित यादव, सज्जन लाल यादव, अशरफ मीणा, हरीश चंद्र मीणा, करण सिंह तारा और उदयलाल अंजना, जोधपुर से करण सिंह को टिकट मिला है। तो 25 में से 10 सीटों पर उम्मीदवार के तौर पर उदयलाल अंजना को चित्तौड़गढ़ से टिकट मिला है। आपको ये नाम बता रहे हैं। हरीश मीणा को टोंक से टिकट मिला है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहा है न्यूज 18 राजस्थान। वैभव गहलोत को वहीं पर जालौर से टिकट, और सबसे बड़ा नाम इसमें राहुल कस्वा जो कि बीजेपी का दामन छोड़कर और कांग्रेस का दामन थामे है, इस बार चुरू से उनको टिकट देकर उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। तो आपको बता दें कि 43 सीटों में से, जिसमें इस बार असम भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, उत्तराखंड भी है। 43 नामों में से 13 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व है, 9 सीटें एसटी के लिए, 1 सीट मुस्लिम के लिए। केसी वेणुगोपाल आज भी दूसरे लिस्ट की कांग्रेस की 43 नामों का ऐलान किए। पहले भी जब कांग्रेस की लिस्ट आई थी तो 39 नामों का, तब भी केसी वेणुगोपाल और साथ में आप पवन खेड़ा को भी देख रहे थे। और इसमें से राजस्थान की 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। एक तरफ बीजेपी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो आज बहुत सोच समझकर कांग्रेस की तरफ से तमाम बैठकों के बावजूद राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 10 नामों का ऐलान किया गया है। आपको टीवी स्क्रीन पर उन 10 नाम दिख रहे हैं राजस्थान के, जो कांग्रेस की तरफ से सोच समझकर उतारे गए हैं इस बार चुनावी मैदान में, ताकि इस बार 1 या 2 सीट तो कांग्रेस के खाते में आ ही जाए। हालांकि टारगेट पूरा है 25 की 25 सीटों जीतने का, इसलिए टफ फाइट देते हुए कांग्रेस ने चाहे रणनीति बनाई हो, चाहे वो जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही जा रही हो, या फिर बीजेपी के पैटर्न पे जिस तरह कांग्रेस चल रही हो, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने 15 उम्मीदवारों में से 2 नाम ऐसे दिए जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए थे, और 10 नामों में से 1 नाम राहुल कस्वा का, जो अभी परसों ही, जिसने अभी 1 दिन पहले जिसने कांग्रेस का दामन थामा है, और उनको भी चुरू से इस बार टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। भरतपुर से संजना जाटव को टिकट मिला है, तो वहीं बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल को। गोविंद राम मेघवाल, राजस्थान चुरू राहुल कस्वाल, राजस्थान झुंझुनू ब्रिजेंद्र ओला, राजस्थान अलवर ललित यादव, राजस्थान भरतपुर मिसेस संजना यादव, राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर हर्षचंद्र मीणा, जोधपुर राजस्थान करण सिंह उचियाडा, राजस्थान जालोर वैभव गहलोत, राजस्थान उदयपुर ताराचंद मीणा, राजस्थान चित्तौड़गढ़ उदयलाल अंजना, उत्तराखंड तेहरी गरवाल जोत सिंह गुनसोला, रकीबिल हुसैन, आसाम बरपेटा दीप बयान। तो आपको 10 नामों का ऐलान फिर से बता देते हैं जो राजस्थान की तरफ से किए गए हैं। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। राहुल कस्वा चुरू से इस बार इनको टिकट दिया गया है। बृजेंद्र ओला को इस बार चुनावी मैदान में, अलवर से ललित यादव को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। अंजना यादव को इस बार भरतपुर से टिकट देकर उतारा गया है। वहीं अशरफ मीणा, करण सिंह, वैभव गहलोत को जालौर से इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। ताराचंद मीणा को उदयपुर से, और साथ ही उदयलाल अंजना को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। संजना जाटव को भरतपुर से, एक महिला को, 10 में से 10 उम्मीदवारों में से एक महिला को
इस बार टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। 43 नामों का ऐलान लोकसभा दृष्टि से, 43 नामों का ऐलान। दूसरी लिस्ट कांग्रेस की जारी कर दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, असम है, उत्तराखंड और गुजरात, इन 5 राज्यों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान करके कांग्रेस, जिसमें दक्षिण भारत को आधे से ज्यादा रखा गया था, लेकिन अब गुजरात को टच किया गया, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम के कैंडिडेट्स को उतारा गया है। और हमारे साथ से न्यूज रूम में सुधीर जी जुड़ चुके हैं। सुधीर के पास हम सबसे पहले रुक कर लेते हैं। सुधीर जी, दूसरे नामों का ऐलान बहुत सोच समझकर, लेकिन मात्र 43 नामों का ही ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से। सुधीर के पास मैं लौटूंगी, सुधीर जी के पास, लेकिन हेमंत हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीसी की बैठक हेमंत, एआईसीसी की बैठक, लेकिन इतने सोच समझने के बाद ही 43 नामों का ऐलान और मात्र 10 सीटों का जिक्र राजस्थान के लिए। अभी 15 सीटें बची हैं। बिल्कुल श्रुति, कांग्रेस की तरफ से दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया गया। कुल 43 नाम है, जिसमें राजस्थान के 10 नामों पर पार्टी ने घोषणा की है। और इनमें अगर देखें तो बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया गया है, जहां पर अर्जुन राम मेघवाल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साथ ही साथ देश के कानून मंत्री हैं, उनके सामने गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस का पार्टी का चेहरा होंगे, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। हालांकि इस बार का चुनाव वे हार गए थे खाजूवाला से, और अब उन्हें लोकसभा के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर उनका ऐलान किया गया है। तो मुकाबला बीकानेर में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। साथ ही साथ जो सबसे हॉट सीट बनकर के उभरी है हालिया दिनों में, जिस तरीके से चूरू के सांसद राहुल कसवा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद से ही उनके चूरू से कैंडिडेट बनाए जाने को लेकर के कांग्रेस के भीतर लगातार चर्चाएं थी। ठीक वैसा ही हुआ है। राहुल कसवा को चूरू से पार्टी ने अपना चेहरा बनाया है और चूरू से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल हेमंत, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ सुधीर जी भी जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, बड़े नामों का ऐलान किया गया 10 सीटों पर, लेकिन मात्र 43 सीटों का ही जिक्र 543 में। देखिए, अपन राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान की सूची में जो 10 नाम आए हैं, क्योंकि पिछले 2 टेन्योर से देखा जाए कि 2014 और 2019 में कांग्रेस का प्रत्याशी तो खड़े किए, लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाई थी यहाँ पे। लेकिन अब चूंकि कुछ अब इस बार के जो नाम दाखिल किए गए हैं, उनमें वो नाम भी शामिल किए जो वर्तमान में सिटिंग विधायक हैं या फिर चुनाव हारे हुए हैं, वो लोग भी इसमें शामिल किए गए हैं। हम सबसे पहले अगर बात करी जाए कि कहाँ किसका मुकाबला होने वाला है, वो एक अलग फहरिस्त दी जाएगी, जिसमें हम बात कर रहे थे भी कुछ देर पहले कि जैसे बीकानेर का जो मुकाबला है वो पूरी तरह से आमने सामने की टक्कर पे आ गया, जहां एक तरफ बीजेपी से अर्जुन मेघवाल है तो बीकानेर से गोविंद मेघवाल, जो पहले पूर्व मंत्री हुआ करते थे, खाजूवाले से विधायक आते थे, लेकिन इन चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब चूंकि ये सामने स्थिति होती जा रही है, चूरू की बात करें, राहुल कसवा जो कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी और कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही उनको ये टिकट दी गई है। तो इस तरह से आज जो सामने नाम आते जा रहे हैं, हरीश मीणा जो कि विधायक के तौर पे देखें, उनको टोंक से जो विधायक है उनको जो टोंक सवाई माधोपुर सीट पे भाजपा कांग्रेस की तरफ से उनको इस बार दी गई थी, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो वो भाजपा से सांसद भी रह चुके हैं। लगातार जो टिकटों की बात की जा रही है, जिसमें खासतौर से झुंझुनू से विजेंद्र ओला को दिया गया है। विजेंद्र ओला सिटिंग में विधायक भी हैं और अब के पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए वहां से मैदान में उतारा है। जोधपुर में पिछली बार जिस तरह से वैभव गहलोत को उतारा गया था, लेकिन उनकी सीट को बदल दिया गया है। जालोर सिरोही से उनको इस बार मैदान में उतारा गया है। वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं, उनको इस बार वहां से दिया गया है। जोधपुर में करण सिंह उचियाड़ा को मिला है, नए कैंडिडेट के तौर पे उतारा गया है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उनको मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, भरतपुर से संजना जाटव को मैदान में उतारा गया है। चित्तौड़ से उदयलाल अंजना, चित्तौड़ क्योंकि उदयलाल अंजना पहले पूर्व में भी मंत्री रहे थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उनको चित्तौड़ से संसदीय सीट के लिए मैदान में उतारा है। कुछ नाम ऐसे जो पहले से डिक्लेरेशन में आ गए थे, ताराचंद मीणा जो कि ब्यूरोक्रेट से आते हैं उदयपुर से, उनको और टिकट दिया गया है।
ये कह सकते हैं कि आमने सामने की तस्वीर, हालांकि अभी चुनाव का जो डिक्लेरेशन है वो हो नहीं पाया है कि अभी तक आचार संहिता या हो नहीं है, दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट पहले ही मैदान में उतार दिए हैं। तो ये सामने देखने वाली बात होगी कि अब धीरे धीरे जो चुनाव की रंगत है, चुनाव की बिसात है राजस्थान की राजनीति में, वो सामने आने लग गई है। खासतौर से नागौर की बात करें कि नागौर में ज्योति मिर्दा थी, वो पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थी, लेकिन अब बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर वो सामने नजर आ रही है। तो अब राजस्थान की राजनीति में जो लोकसभा का रण है वो अब पूरी तरह से सजने लगा है। जी, आपको क्या लग रहा है सुधीर जी कि इस बार जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो उतारे गए हैं, बीजेपी पहले ही बोल रही है कि 25 की 25 सीटें वो लेकर आएगी, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं, क्या टफ फाइट आप देख रहे हैं? देखिए, अभी क्योंकि पूरी तस्वीर अभी इलेक्शन का डिक्लेयर होना बाकी है, उसके बाद में चुनाव प्रचार किए, फिर चुनाव के जो मुद्दे हैं वो आना बाकी है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात की जाए, जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे अभी फिलहाल जो पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है वो बीजेपी के नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की राजनीति की बात की जा रही है, उन पर जो वोट कास्ट हो रहा है उसको देखते हुए लगता है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कोई तस्वीर बदल जाए, कोई सिनेरियो बदल जाए, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो नतीजे हैं या जो चुनाव के परिणाम आने वाले आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें वो उधर ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी हेमंत भी जुड़े हुए हैं। हेमंत, आपकी तरफ रुख करते हुए 10 नामों का ऐलान तो हो गया। हेमंत, कैसे देख रहे हैं आप इसके पीछे? कांग्रेस की क्या रणनीति रही है इन नामों के ऐलान करने के पीछे? हेमंत, चेहरे भी हैं और महिला चेहरे के तौर पर भी हैं, तो कुछ जो है वो अनुभवी चेहरे भी इस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है, उनको उतारा है। मतलब सिटिंग एमएलए पे भी भरोसा जताया गया है, एक महिला कैंडिडेट के ऊपर भी भरोसा जताया गया है, ब्यूरोक्रेट्स को भी उतारा गया है और जो नामचीन चेहरे हैं उनको भी मौका दिया गया है। आपको लग रहा है कि जो सोच समझकर रणनीति बनाई गई है वो क्या कामयाब होगी हेमंत कांग्रेस की? देखिए श्रुति, जिस तरीके से सुधीर अभी बता रहे थे और उन्होंने कहा कि एक टफ फाइट की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर की गई है। और इस लिस्ट को अगर देखें, मैं सवाल करना चाह रहा था सुधीर जी से, क्योंकि लगातार उनकी पैनी नजर रही है राजनीतिक गलियारों को लेकर के और तमाम चुनाव भी उन्होंने देखे हैं। सुधीर जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं इस वक्त, तो मैं जरूर यह जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिहाज से कि ये जो लिस्ट है कितनी संतुलित आपको 10 नाम, हालांकि अभी 15 नामों का ऐलान होना राजस्थान के लिहाज से और बाकी है, लेकिन ये जो 10 नाम आए हैं जिसमें युवा चेहरे भी है, अनुभवी चेहरे भी हैं, तो साथ ही साथ नए चेहरे भी हैं, महिला का चेहरा भी है। देखिए, निश्चित रूप से जहां एक ऐसी पार्टी जो संघर्ष कर रही है अपने अस्तित्व के लिए कि यहाँ प्रत्याशी कौन हो, और जो उनके कैंडिडेट रहे, जो मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री सरकार में स्टेट में रहे हैं, वो तमाम लोग अगर दूसरी तरफ डाइवर्ट होकर बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर कैंडिडेट खोज कर लाकर उनको सामने खड़ा किया जाना और वो भी एक फेस के तौर पे लाना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन्होंने ऐसे कैंडिडेट मैदान में देने की कोशिश करी है जो जाने पहचाने चेहरों के तौर पर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हों। ऐसे नाम आप देख सकते हैं, हरीश मीणा का नाम भी है, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला का नाम है, ये तमाम ऐसे नाम है। खाजूवाला से जो पूर्व में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, गोविंद मेघवाल, उनको भी सामने लाया गया। तो ऐसे चेहरे देने की कोशिश की गई है ताकि लोगों के सामने फेस की जो प्रॉब्लम है कि फेस लोग जनता जानती नहीं है, ऐसी समस्या खड़ी नहीं है, उसको देखते हुए उन्होंने इनको मैदान में उतारा है। जी सुधीर जी, अगर उदयपुर सीट के मुकाबला देख लें तो मन्नलाल एक तरफ से हैं, ये जो ऐलान हुआ बीजेपी की तरफ से और मौजूदा सांसद का टिकट काटा गया, उसके बाद राहुल कस्वां कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, वहां पर मुकाबला आप किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? क्योंकि सामने एक खिलाड़ी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल कस्वां को ही वहां पर प्रत्याशी बनाया गया जैसी चर्चाएं थी। देखिए, अगर राहुल कस्बा की बात की जाए तो राहुल कस्बा की जो राजनीतिक के हिसाब से देखें कि वो वहाँ के सांसद रहे, लगातार सांसद रहे, उनकी टिकट पिछली विधानसभा की जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे उसके अकॉर्डिंग वो काटी गई थी कि पार्टी की जो गतिविधियाँ थी उनके खिलाफ उन्होंने काम किया, इसलिए उनकी टिकट कटी। टिकट कटने के साथ क्योंकि वो लगातार से सिटिंग सांसद वहाँ से रहते आए, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस में चले गए। लेकिन अब जिस जनता के को चुनकर उनको 2 बार बीजेपी के लिहाज से भेजा था, क्या वो जनता उनको कांग्रेस के लिहाज से जिताएगी, ये बड़ा सवाल होगा। ये रिजल्ट के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसा कैंडिडेट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से जो मुकाबले में वहां पर रहने वाला है। सुधीर जी, आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी का जो फॉर्मूला था
वही कांग्रेस भी फॉर्मूला सेट करके अपने कैंडिडेट्स को 10 सीटों पर उतारी है? हाँ, निश्चित रूप से कह सकते हैं इस मामले में, क्योंकि आप ही देखिए पिछले 2 चुनाव हो गए, 2014 और 2019, 2 चुनाव बीत गए। दोनों चुनाव में राजस्थान से 25 में से 1 सीट भी जीत के यहाँ से कांग्रेस संसद तक नहीं पहुंची है। लिहाजा जो कैंडिडेट उतारने की बारी थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि ऐसे चेहरे उतारे जाएं जिनकी फेस वैल्यू कम से कम हो, जनता के सामने जाए तो नजर आए कि कांग्रेस के ये उम्मीदवार हैं। इन 10 सीटों में अगर देखते हैं तो वो जो फेस वैल्यू की बात की जा रही है, वो फेस वैल्यू करीब करीब लाने में कांग्रेस कामयाब भी रही है। अब जनता वोट देती है नहीं देती है वो उसका मत है, लेकिन एक फेस वैल्यू के तौर पे कांग्रेस ने अपने ये 10 कैंडिडेट खड़े किए हैं। जी बिल्कुल। अब हम एक एक सीट का, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स उतर चुके हैं सुधीर जी, और जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स भी उतर चुके हैं, अगर उसकी एनालिसिस कर ले तो आपको अभी किसका पलड़ा भारी लग रहा है? चूरू पे देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी की तरफ से है, राहुल कस्बा की तरफ से है कांग्रेस। बिल्कुल, ये एक इस तरह से कह सकते हैं कि राहुल कस्बा जो बीजेपी के सांसद हुआ करते थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां बने हैं। देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक के विजेता रहे हैं, ओलंपिक में वो जीत के आए हुए हैं, खिलाड़ी हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि में उनकी विशेष नजर नहीं आती है। लेकिन राहुल कस्बा की अगर बीजेपी के लिहाज से अगर हम देखते पहले तो पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन चूंकि अब वो कांग्रेस की तरफ आ गए, अब जो मतदाता का रुख है क्या वो राहुल कस्बा की तरफ रहेगा, ये देखने वाली बात है कि जो उनका जनाधार जो पार्टी के तौर पे बीजेपी के साथ था वो क्या कांग्रेस में कन्वर्ट होगा, वो देखने वाली बात होगी। जहां तक बीकानेर की बात करें, बीकानेर के में अर्जुन मेघवाल थे, वहां पर गोविंद मेघवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं। एक जो लगातार जीतते आ रहे अर्जुन मेघवाल केंद्र में मंत्री हैं, उनका मुकाबला प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकार के हारे हुए मंत्री के सामने रहने वाला है। ये जो विधायक के तौर पे भी वो चुनाव हार गए थे खाजूवाला से, तो निश्चित रूप से ये मुकाबला तो होगा, लेकिन चूंकि फेस वैल्यू के तौर पे तो कांग्रेस फेस वैल्यू सेविंग कर रही है, लेकिन क्या मतदाताओं को वो आकर्षित कर पाएगी? क्योंकि एक लोकसभा के तहत करीब करीब 8 सीटें जो विधानसभा की कवर करती है, उन 8 विधानसभाओं में वो अपने पकड़ बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है सुधीर जी, आप इसमें देखिए कि किसी भी केंद्रीय चेहरे को नहीं उतारा गया है। 10 सीटों पर किसी भी केंद्रीय चेहरे को एंट्री ना देना, इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है कांग्रेस की? देखिए, मैंने कहा ना, लगातार एक 10 साल का बहुत बड़ा गैप हो जाता है जिसमें कैंडिडेट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे समय में जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हो, उसमें कैंडिडेट खोज के लाना, उनको खड़ा करना, उनकी फेस वैल्यू को जनता के बीच में रखना और फिर चुनाव लड़वाना, क्योंकि 10 साल से जो पार्टी सत्ता में नहीं है, 10 साल से राजस्थान में कोई सीट नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस इस बात की कोशिश कर रही है कि जनता के बीच में जो फेस है, जाने पहचाने चेहरे ही उतारे मैदान में, वो उतारने में वो कामयाब इस जो 10 सीटों में उतारने में रही है। बिल्कुल। हेमंत, आपकी एनालिसिस क्या कहती है इन 10 सीटों की? कांग्रेस को और क्या इन 10 सीटों पर मजबूती दिखानी चाहिए थी? देखिए, अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत ही ऐलान किया है श्रुति, और जिस तरीके से कांग्रेस की कोशिश यही है कि कम से कम कड़ी टक्कर दी जाए। जैसे कि सुधीर अभी बता रहे थे कि बीकानेर में चाहे वो अर्जुन मेघवाल के सामने जो गोविंद राम मेघवाल का चेहरा है वो सामने रखने की बात हो, हालांकि कई और भी नाम बीकानेर से चल रहे थे, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल के सामने गोविंद राम मेघवाल को एक अनुभवी चेहरे के तौर पर पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो वहां ये कोशिश की है कि मुकाबला कम से कम टक्कर का हो, कांटे का हो। वही समीकरण जैसे कि चूरू का बता रहे थे सुधीर जी कि चूरू में जो कस्बा परिवार है वो राजनीतिक लिहाज से एक मजबूत परिवार माना जाता रहा है। खुद राहुल कस्बा के जो पिता है राम सिंह कस्बा, वे भी सांसद रहे, विधायक रहे। साथ ही साथ उनके जो पिता है दीपचंद कस्बा, जो राहुल कस्बा के दादा है, वे भी वहां से विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। साथ ही जो कमला कस्बा है वे भी वहां से विधायक रही हैं, सादुल शहर से, चूरू से। तो इस लिहाज से एक बड़ा जो है वो कुनबा उनका राजनीतिक लिहाज से मजबूत माना जाता है। इस लिहाज से अगर चूरू की सीट पर हम देखें, देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी की तरफ से दूसरी तरफ है चेहरा है, तो देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक में देश के लिए मेडल ला चुके हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वे नए हैं। हालांकि बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि हमारा चेहरा कमल का फूल है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। उसी आधार पर अब ये कोशिश होगी, जैसे नागौर के समीकरणों की बात कर ले या फिर बाकी जगह पर जहां पर चाहे जोधपुर की बात कर ले, गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने करण सिंह उचियाड़ा को एक नए चेहरे के तौर पर पहली दफा उनका सांसद का चुनाव होगा। इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। नए चेहरे भी हैं, युवा चेहरे भी हैं। वैभव गहलोत की बात कर लीजिए, पिछली दफा जब वैभव गहलोत को
पार्टी ने जोधपुर से सांसदी का चुनाव लड़वाया था, वे हार गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने। हालांकि जो जोधपुर की रवायत रही है सांसद चुनाव की अब तक कि जोधपुर में 6 बार नए चेहरों को 1952 के बाद से वहां की जनता ने मौका दिया, लेकिन वैभव गहलोत वहां से नहीं निकल पाए या कांग्रेस को सीट नहीं दिला पाए, लिहाजा उनको अब की बार जालोर सिरोही सीट से उतारा गया है। तो वहां पर भी कोशिश कांग्रेस पार्टी ने यही की है कि ये जो दांव जो जोधपुर में विफल हुआ था उसको जालोर सिरोही पर चलाया जाए। वहां के समीकरण क्या होते हैं, वहां पे अभी सुधीर जी कह रहे थे कि वहां अब देखिए जनता ही तय करेगी कि आखिरकार किन के पक्ष में जनता जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जरूर ये कोशिश की है कि एक संतुलित नाम जो है वो हर सीट पर दिया जाए, ये कोशिश की जाए कि कम से कम फाइट रहे, नेक टू नेक फाइट रहे। बिल्कुल, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन जोधपुर से ना देकर जालौर से वैभव गहलोत को उतारा गया। आरसीओ को लेकर वैभव गहलोत का नाम वैसे भी इतना चर्चा में रहा है, क्या वहां के जातीय समीकरण को साथ पाएंगे वैभव गहलोत? जाति समीकरणों के हिसाब से बात करें तो जो जालोर सीट है वहां पर जालोर सिरोही जो सीट है वो उस पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और साथ ही साथ ओबीसी के मतदाताओं की संख्या भी है। तो इस लिहाज से कोशिश यही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वैभव गहलोत को इसका फायदा मिले, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो ओबीसी SC ST का वोट बैंक है, हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि पूरा वोट बैंक जो है वो शिफ्ट किया गया और भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटों पर जीत मिली थी। एक नागौर की सीट थी जहां पर बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया RLP के साथ में और हनुमान बेनीवाल निकाल पाए। बाकी पिछले 2 चुनाव लोकसभा के इस तरह के हैं कि 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई है, एनडीए के खाते में गई है, हम ये कह सकते हैं। तो इस बार कांग्रेस ने कम से कम ये कोशिश की है कि फाइट जो है वो कांटे की हो। ये बिल्कुल बहुत टफ फाइट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है, इसीलिए युवा चेहरे को, महिला चेहरे